Good afternoon, बच्चे. Good afternoon, everyone. Hi, Soumya. But we were doing this topic, mode of Yes, ma'am. nutrition. Mode of nutrition. Okay. So I'll start with this topic. बच्चे ये पार्ट एनसीईआरटी से अलग है. नोट्स आपने सभी ने फॉर्म करने हैं. जिसको प्रॉब्लम आ रही है, जिसके नोट्स नहीं बने हुए, just let us know in the office. We'll send you PDF files. Okay. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था बैक्टीरिया या मोनरा में there were two different types of mode of nutrition. कौन से थे उसके अंदर? Autotrophic and heterotrophic. Yes, autotrophic and heterotrophic. ऑटो में याद होगा हमने पढ़ा था there are different types of autotrophs. They may be chemoautotroph or photoautotrophs. Chemo means chemical, photo means light. They may be photoautotrophs. Photoautotrophs होंगे जो photosynthesis करेंगे. Chemotrophs से chemoautotrophs इनको बोलते हैं chemoautotrophs. बच्चे नेक्स्ट क्लास से सभी अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक भी रखोगे. इफ यू हैव नॉट गॉट योर एनसीईआरटी +1 बायो, प्लीज गेट इट, बिकॉज ये +1 की एनसीईआरटी बुक इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल दी टॉपिक्स. हम एनसीईआरटी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट भी करेंगे. मैम माइक कनेक्टेड नहीं है. हाँ, माइक नहीं है कनेक्टेड, आप देख लेना मैम. और आई थिंक एक दो स्टूडेंट्स और भी नहीं है अभी आए, ज्वाइन इन नहीं किया. यस मैम, वो कॉल नहीं पिक कर रहे थे, ज्वाइन कर रहे हैं मैम कुछ बच्चे. ओके 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 मैम. तो प्रोटिस्टेंस में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? सेम यूनिसेल्यूलर है बट दे आर यूकैरियोटिक. जैसे पैरामीशियम, अमीबा. फंजाई में आते हैं ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मल्टी सेल्यूलर. देखो डिफरेंस आ रहा है हर एक में. और वो यूकैरियोटिक तो हैं, ये भी यू थे, ये भी यूकैरियोटिक है, बट दे आर सेप्रोफिटिक. Yes, Fanisha, tell me, what do you mean by saprophytic mode of nutrition? Which feed on? Saprophytes are the organisms. Yes, Kashish, Kiran, anyone? Fanisha? Ma'am, they feed on dead and decaying organic matter. On dead and decaying matter. Yes, dead and decaying. Yes, Fanisha, I think your mic is not working, Rajay. So saprophytic mode of nutrition is mode in which organisms feed on dead and decaying plants and animals. Again, plantae भी multicellular हैं. They are also eukaryotic, but they are autotrophic. सबको पता है. Autotrophic. Yes, autotrophs. That means they can make their food. Again, these are multicellular. These are eukaryotic, but they are heterotrophic. तो इस basis पे R.H. Whitaker gave 5 kingdom system of classification, and I have already given you all the points. I've asked you to make the notes also. बच्चे notes बहुत ज़्यादा important रहेंगे. NCERT book सबके लिए mandatory है. Navneet, reply back if I am audible to you. But your mic is not connected, so just let me know if I am audible and you are listening to me. Just write it down. Navneet, reply back, bete, because your mic is not connected. So I guess there is some connectivity issue. So R.H. Whitaker हमने किया. Muskan, am I clear to you? This page? Yes, ma'am. Okay, okay. तो अब जो हम कर रहे थे टॉपिक, we were doing bacterias, and bacterias को divide किया हमने on the basis of their mode of nutrition. तो mode of nutrition में they may be autotrophic which can make their food. Chemoautotroph in the presence of sunlight, chemoautotrophs which can make their food in the presence of chemicals. तो इनके basis पे हम लोग last time लिख चुके हैं. They have pigments like bacteriochlorophyll.
मुस्कान अब थोड़ा सा हम पार्ट करेंगे which is important from NEET point of view. This is not given in NCERT. तो bacteriochlorophyll. Hi Tanveer, Vijay, you are late. Yes, ma'am. Network issues आ रहे थे. Okay, no worries. Vijay, we have just now started with this topic जो हमने last time किया था. Bacteria on the basis of mode of nutrition. तो chlorophyll है, okay, bacteriochlorophyll and bacterioverdin. These are the two types of chlorophyll which helps them in fixing sunlight. और ये एनऑक्सीजनिक है, इसमें से ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा. So there are bacteria which show photosynthesis, but they do not release oxygen. Very, very, very important. Chemoautotrophs वो हैं जो केमिकल को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल दे हेल्प इन फिक्सिंग अमोनिया या नाइट्रोजन. और इसमें मुझे लास्ट टाइम किसी बच्चे ने बताया था इट मे बी राइजोबियम, बट माय डियर फ्रेंड्स इट इज नॉट राइजोबियम, इट इज नाइट्रोसोमोनास. नाइट्रोसोमोनास के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे इसके बारे में. तो नाइट्रोसोमोनास and Nitrococcus. These are the bacteria which remain in soil. They are chemoautotrophs and helps in fixing nitrogen from air. तो ये आप part लिख चुके हो. I'm just revising. मुस्कान, I'll explain it in details. Don't worry. जहाँ नहीं समझ आएगा just ask me, मुस्कान. Otherwise जिसको भी कोई problem आती है just raise your hand or just let me know. So photoautotrophs or chemoautotrophs. Photoautotrophs are those which can make their food in the presence of sunlight. Chemo, which use chemicals to make their food. Bacteria are present everywhere. They are omnipresent. आप बात कर रहे हो तो आपके मुंह में भी बैक्टीरिया है, पेट में तब भी बैक्टीरिया है. They are present everywhere. तो अब अगर हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉफ्स में, तो हेटेरोट्रॉफ्स में they will show saprophytic mode of nutrition. Sorry, it is saprophytic. Saprophytes are those which feed on dead and decaying. और इसमें एग्जाम्पल आती है क्लॉस्ट्रीडियम. आप लोगों को अब ये एग्जाम्पल्स लर्न करनी है. जब आप नीट के क्वेश्चंस करोगे एमसीक्यूज, देन यू विल गेट टू नो. सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया के बारे में पूछा जाएगा. तो क्लॉस्ट्रीडियम सेप्रोफिटिक वो होता है जो डेड और डिकेइंग पे खाना खाता है. अभी किसी ने बताया था मुझे. और एग्जाम्पल इसके अंदर आती है फंजाई. लेकिन बैक्टीरिया में अगर पूछा जाए तो इट इज एग्जाम्पल इज क्लॉस्ट्रीडियम. सिम्बायोटिक, प्लीज राइट इट डाउन एवरीवन. सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, यस, लास्ट टाइम किसने आंसर दिया था मुझे? बैक्टीरिया विच इज सिम्बायोटिक. राइजोबियम या जितने भी लेग्यूम प्लांट्स हैं, जितनी भी दालें हैं, लेग्यूमिनस, जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, आप उनको अपरूट करोगे. जिनमें दालें लगती हैं, सीरियल्स लगते हैं, सीरियल क्रॉप्स बोलते हैं. अगर आप इन पौधों को अपरूट करोगे, यू विल सी अंडर सॉइल, ये इसमें रूट्स में यू विल सी बीडेड अपीयरेंस. ऐसे लगता है कि इसमें ना बीड्स लगे हुए हैं, पिंसियां हो गई, इतनी येलो येलो बीड्स होते हैं. ऊपर आपके प्लांट होगा, मटर का है, सीरियल क्रॉप्स है. जब उसको अपरूट करोगे तो नीचे रूट में से आपको ये बीड्स बहुत मोटे मोटे येलो कलर के पिंसियां सी लगेंगी. एंड दीज आर द एरियाज वेयर दिस राइजोबियम इज रिसाइडिंग. तो राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ दीज प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट. तो मैंने आपको प्लांट भी बता दिया, लेग्यूमिनस प्लांट, और बैक्टीरिया का नाम लिखवा दिया विच इज राइजोबियम. फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है पैरासिटिक. यू हैव टू राइट इट डाउन. नोट्स बहुत अच्छे बनाना, क्योंकि जब आप नीट के क्वेश्चंस करोगे यू विल फाइंड दिस वेरी यूजफुल, क्योंकि आपको और कोई किताब कंसल्ट करने की जरूरत नहीं होगी. देयर आर बैक्टीरिया विच आर पैरासिटिक इन नेचर, जो हमारी बॉडी में एक बीमारी कॉज करता है. उसका नाम था विब्रियो कॉलरा, CHOLERA. विब्रियो कॉलरा नाम से पता चल रहा है कॉज कर रहा है कॉलरा. और जो ये कॉलरा कॉज कर रहा है, जो विब्रियो कॉलरा, जो ये कॉलरा कॉज करता है,
ये बीमारी होती है हैजा, बच्चों को बहुत जल्दी होता है, पानी में बीमारी होती है, इसमें लूज मोशन लूजेस बहुत ज्यादा लग जाते हैं और अल्टीमेटली लूज मोशन से डेथ भी हो सकती है, तो इट्स अ बैक्टीरिया. Example given in the okay heterotrophs. Okay, I'll repeat all the examples. सबसे पहले एग्जांपल दिए सेप्रोफिटिक में क्लोस्ट्रीडियम, CLOSTRIDIUM. सिम्बायोटिक में दिए राइजोबियम विच इज प्रेजेंट इन लेग्यूमिनस प्लांट. पैरासिटिक एग्जांपल दिए विब्रियो कॉलरा, CHOLERA. So these are the examples. How many of you are clear with this topic, autotrophic और heterotrophic? इसमें examples थी जो आपको डिटेल में लिखवा दी हैं. Okay, Tanvi, Sukman, Kiranpreet, yes. Others, yes, please raise your hand. Muskan, if it is clear, raise your hand, bete. Okay, Fanisha, Aditya, got it. Okay, Muskan, shabash. What about others? Yes, raise your hand. Soumya, I'm waiting. Navreet, I'm waiting, bete. Okay, got it. So instead of mode of nutrition पे, these are the different types of bacteria as the examples are important. In NCERT में कुछ भी नहीं ऐसा दिया हुआ. It is very simple in NCERT. We'll discuss it in the next class from NCERT also. Next topic is types of bacteria on the basis of their stain. On the basis of their staining. आप ये types पढ़ रहे हो on different basis. अभी nutrition में पढ़ा था on the basis of staining bacterias. तो एक स्टेन था जिसमें साइंटिस्ट का नाम है क्रिस्टियन ग्राम. आई एम रिपीटिंग, इट इज क्रिस्टियन ग्राम. ही गेव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्टेनिंग. नाम से ही उसने अपना नाम दे दिया और उसने बोला ग्राम स्टेनिंग. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बिकॉज देयर आर सम बैक्टीरिया व्हिच आर ग्राम पॉजिटिव. जो स्टेन को उठा लेते हैं दे आर ग्राम पॉजिटिव. जो ग्रे स्टेन में कलर नहीं आता दे आर ग्राम नेगेटिव. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेन. और उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे ये पता चलता है, जिससे बैक्टीरिया दे टेक अप दिस स्टेन. तो प्लीज राइट डाउन द स्टेप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग. लिख रहे हो आप? Kashish, am I clear, bete? There is cracking. voice is cracking. Yes, Just ma'am. wait. Okay, wait. Bache, is this fine now? Yes, ma'am. Now it is fine. Okay. बच्चे आप लोग एक्सपेरिमेंट लिखो. ग्राम स्टेनिंग बाय क्रिस्टियन ग्राम. तो इसमें एक्सपेरिमेंट लिखो. हीट बैक्टीरिया ऑन स्लाइड. Heat bacteria on slide. तो सबसे पहला स्टेप किया आपने हीटिंग बैक्टीरिया ऑन स्लाइड. दूसरा स्टेप पुट इट इन क्रिस्टल वॉयलेट. फॉर 1 मिनट. पहले आपने बैक्टीरिया को हीट किया स्लाइड पे, फिर उसको आपने रखा क्रिस्टल वॉयलेट में फॉर 1 मिनट. देन वॉश इट, क्योंकि कलर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसको वॉश करना है. देन ग्राम आयोडीन, सिंपल आयोडीन सोल्यूशन होता है, ग्राम आयोडीन ऑन दी स्लाइड फॉर 1 मिनट. Ma'am, what is Iodine the डाल. meaning of gram over here? But we are using gram for after the name of scientist is Christian Graham. तो ग्राम बार बार आ रहा है ना, दैट इज इट इज नॉट कि 1 ग्राम लिया 2 ग्राम लिया. इट इज बिकॉज कि ग्राम स्टेन जो है, वी आर यूजिंग ग्राम स्टेन. Can you repeat the fourth step? Okay, gram iodine on slide for 1 minute.
Yes, ma'am. Okay. Then you'll see that all the bacteria they turn purple. Write down bacteria will turn purple. All. अभी कुछ gram और negative और positive नहीं है. Turn purple. Then wash it with 90% acetone or alcohol. Done. Wash it with 90% acetone or alcohol. Next point is, if it is purple, अगर वही color purple, then it is gram positive. Gram positive है अगर ये purple color है. If it has lost the strain, तो उसको फिर हम ऐड करते हैं सेफनिन में, and then it is called as gram negative. So gram positive will retain the strain and gram negative will lose it. This is an experiment. I've just given you to explain this experiment, but it is not required. सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, so that it is clear to you, because ये concept बच्चों को BSc तक नहीं समझ आता. What is this mean exactly? Ma'am, can you repeat after 6th? Wash in 90% alcohol or acetylene. Then, if it retains purple color, then it is gram positive. If it retains purple color, it is gram positive. And if it has lost the stain, and by adding safranin, it turns red, it is gram negative. Done, everyone? Ma'am, I Yes, have a ma'am. doubt. Yes, yes. Ma'am, how is this possible that first of all, when we wash it with the stain, gram stain, so it like it takes over the color violet. But when we wash it with saffron, then it just it lost the color. How is this? हाँ, अब मैं आपको I'll explain in brief. बच्चे just look on your screen. आपने क्या किया, बैक्टीरिया को पहले किल किया. आफ्टर हीटिंग इट गेट्स किल, नो? तो बैक्टीरिया को आपने हीट किया पहले स्लाइड पे रख के, फिर उसमें आपने वॉयलेट कलर ऐड किया, वॉश किया, आयोडीन डाला, 1 मिनट तक रखा, तो सारे बैक्टीरिया का कलर जो है दैट इज टर्न्ड इनटू पर्पल. फिर उसको आपने वॉश किया इन द प्रेजेंस ऑफ 9. So after washing it with 90% alcohol or acetone, if it retains the purple color, जो पर्पल कलर था ना, बैक्टीरिया का कलर वही था, आपने वॉश किया 90% अल्कोहल और एसीटोन में, उसका कलर अगर वॉश हो गया, then it is gram negative. If it is the same color purple, it is gram positive. तो ये कहा जाता है, if it retains the purple color after even after washing 90 acetone or alcohol, it is gram positive. And if the color is lost and you add saffron to it, red color, then it is gram negative. Am I clear to you now, Sukman? Yes, ma'am. Okay. तो ये पूरी एक स्टोरी है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए थी, because this is not given in any of the books. So I've used higher books to elaborate this. So I'm giving you just idea, gram positive and gram negative. If you'll see, gram positive में they have cell wall, cell membrane. This is cell wall.
This is cell membrane. Or cell wall is made up of material which is known as peptidoglycan. ये तो पता है सभी को, मैंने पहले बताया था आपको। और इसी Yes, चीज ma'am. को एक और नाम देते हैं, टाइकोइक एसिड। तो अगर टाइकोइक एसिड है तो वो रिटेन करेगा कलर, अदरवाइज इट विल नॉट रिटेन। तो सेम इज विद ग्राम नेगेटिव, है उसके पास भी यही, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, but additional to this they have a special layer which is known as lipoprotein. Special layer bahar aa gayi. This is again a special layer which is lipoprotein, and they do not have teichoic acid. So without teichoic acid, please draw this diagram. तो पता चल गया आप सभी को ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव के बारे में? If yes, then just raise your hand. Yes, ma'am. Very good. Okay, so can I move to the next page now if you are done? No, ma'am. Okay, take your time. Some lipoprotein is a type of a chemical or just a layer on cell It's a cell layer, wall. layer, bete, layer. It's an outermost layer. Okay. It's a kind of a protective covering or layer by layer. Cell wall के बाहर अगर आ गया तो it is gram negative. It will not pick up the stain. और अगर if it is absent teichoic acid, it's a kind of a material which is present on the outer side. So now I'm moving to the next part. I hope this gram positive thing is clear. क्योंकि बहुत सारे बुक्स में ये क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में, एंड दिस question is not clear to many students till now. So I have made it clear to you by giving the experiment also and the reason why it takes up the stain and why it does not take up the stain. Now I'm moving to next part, bacteria, types of bacteria on the basis of respiration. Please write down on the basis of respiration. Soumya, clear a bit? If yes, then just raise your hand. Soumya. Soumya, is it clear? If yes, then just raise your hand, bete. Yes, ma'am. Okay, okay, got it. Next, on the basis of respiration, there are of two types, okay, aerobic or anaerobic. नाम से पता चल रहा है, bacteria which works in the presence of oxygen are aerobic. In the absence of oxygen, they are called as anaerobic. So aerobic में oxygen present. और aerobic bacteria have mesosome. क्या हमने बैक्टीरिया का डायग्राम किया अभी? Yes, ma'am. ओके, तो बैक्टीरिया के डायग्राम में outermost is cell wall, inner one is cell membrane,
and this invagination is known as mesosome. Okay, on which DNA is attached, nucleoid, naked DNA. तो mesosome का main function ये होता है respiration. पूछा जाता है what is the function of mesosome? We'll write this question, very 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 important. और मैंने आपको बताया था mesosome helps in increasing the, yes, mesosome का main function क्या है? To increase the surface area. surface area. Yes, why it increases the surface area? For absorption, for respiration. कोई भी सेल में अगर इन्वेजिनेशन या इंक्रीज होगा surface area, कभी भी उसकी लेंथ बढ़ेगी या उसका एरिया बढ़ रहा है, surface area इंक्रीज हो रहा है, तो इट इंक्रीज दी साइज बढ़ रहा है, तो इट ऑलवेज इंक्रीजेस द surface area. If you all are done, can I move to the next part now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. Anaerobic में it can be in the absence of oxygen, that is fermentation. पता है सबको, अल्कोहल बनता है fermentation से, anaerobic. It can be absence of oxygen, like in decay. जब ये खाना खाते हैं, decay करते हैं, decay process जिसमें dead organism को खाते हैं, bacteria. Yes, ma'am. और yes, and another thing is putrefaction. जब ये बाल भी खाते हैं, अब कोई डेड बॉडी है, डेड, आई एम सॉरी टू से, कोई डेड ऑर्गेनिज्म है, कोई डेड बॉडी है, तो आप देखते हो वो थोड़े दिनों में डिग्रेड होनी शुरू हो जाती है, स्किन खाली, स्कैवेंजर्स खाते हैं. Yes, ma'am. तो सारे ऑर्गेनिजम्स उनको खा लेते, दे आर कॉल्ड एज स्कैवेंजर्स. अल्टीमेटली जो उनका ब्लड रह जाता है, यूरिन रह जाता है, या उनके थोड़े इंटेस्टाइन के पार्ट, आंतड़ियां रह जाती हैं, वो कौन खाता है? बैक्टीरियाज. तो बैक्टीरियाज दे डू दिस प्यूट्रिफिकेशन. उनके बाल रह जाते हैं, आईब्रोज के रह जाते हैं, बॉडी के हेयर रह जाते हैं, हुप्स, नेल्स रह जाते हैं जो डेड है. कौन खाता है उनको? उनको खाएंगे बैक्टीरिया. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज PUTRIFACTION. तो आपको फर्मेंटेशन ने क्या दिया? इथेनॉल. Repeat the form of petrification. Putrefaction, PUTRIFACTION. PUTRIFACTION. Putrefaction is decaying of proteins, जैसे बाल हैं, nails हैं, hooves हैं, in case of animals, horns हैं, समझ रहे हो? तो उनको खाता कौन है? उनको बैक्टीरिया डिग्रेड करते हैं. Can I move to the next page now? Yes. Yes. If you all are okay. तो ये पार्ट आ गया एयर रेस्पिरेशन के लिए, और आप लोग पहले पढ़ चुके हो. To next part, that is reproduction. Reproduction in case of bacteria. ये हम सिर्फ एक्स्ट्रा पार्ट कर रहे हैं, कल हम एनसीईआरटी नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी पार्ट से करेंगे. There are two modes of. Can anyone tell me how do bacteria reproduce? Ma'am, asexually. Asexually. Asexually by which mode? Fission. Yes, Ma'am. very good. Binary fission. Shabash. Very good. And sometimes they reproduce by asexual mode also, but it is not common. I have already given you this topic. The most common is asexual mode. और bacteria they divide after every. Yes, कोई बताएगा? मैंने नीट का इक्वेशन नेम्स का पूछा था आपसे. In 1 minute. नहीं, तब बच्चे शायद, I guess I told you that bacteria always divide in 20 minutes. They double themselves. Did I?
Yes? No? Okay. No. No. So bacteria, they double themselves after every 20 minutes. Okay. So after every 20 minutes, bacteria always double themselves. कोई भी bacteria, they double themselves. और एक बैक्टीरिया के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुन लो, कहते हैं अमर है, इमॉर्टल। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इमॉर्टल, अमर है, कभी मरता ही नहीं? रावण की तरह। यस, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। व्हाई दे डू नॉट डाई? बिकॉज देखो ये पेरेंट था। हमारे में पेरेंट क्या होते हैं, सॉरी टू से, पेरेंट की डेथ हो जाती है तो बच्चे होते हैं, लेकिन इसमें ये पेरेंट नहीं, अपने दो हिस्से कर दिए इसने, आधा हिस्सा ये, नीचे वाला हिस्सा ये, देख रहे हो? तो ऊपर वाला हिस्सा जैसे पेरेंट में पी ने, उसने अपना ऊपर पार्ट इसको दे दिया, लोअर पार्ट इसको दे दिया, फिर आगे डिवाइड होगा, फिर ये आगे अपने हिस्से दे देगा। तो इट इज द पेरेंट विच इज डिवाइडिंग ऑल द टाइम, पेरेंट रिमेन्स देयर ऑलवेज, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इमॉर्टल। इमॉर्टल इज विच रिमेन्स फॉरएवर। तो इसमें बैक्टीरिया कह दो, अमीबा भी ऑल्सो दे रिप्रोड्यूस बाय फिशन, तो वो भी यही है। तो बेस्ट आंसर इज, बड़ा ही नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल। मैक्सिमम बच्चे जैसे हाइड्रा है या कोई और ऑर्गेनिज्म देते हैं, इट इज द बैक्टीरिया, and I've given you the reason also why bacteria. So most common asexual mode is binary fission. There are two different modes. Please write it down. लिखते रहो बेटे साथ साथ। रेस्पिरेशन लिख लिया था सभी ने? Yes, ma'am. Okay, reproduction note down करो, binary fission. Then I'll move to the second part of asexual reproduction. मैम मोड ऑफ न्यूट्रिशन से पहले कुछ लिखवाया था आपने? No, that was the first slide. First Okay. slide थी। Okay. फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप, आप लिखोगे सेकेंड टाइप, एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन, इसमें ये अपने बॉडी में अंदर स्पोर्स फॉर्म करते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। तो एंडोस्पोर कब फॉर्म हो रहा है? मैंने अभी क्या नाम दिया आपको? अनफेवरेबल कंडीशन। वेरी गुड, अनफेवरेबल कंडीशन। बी एक्टिव इन द क्लास एवरीवन। आई वांट एवरीवन शुड पार्टिसिपेट। जिसको नहीं समझ आ रहा, आस्क मी, बट यू शुड बी एक्टिव इन द क्लास। लास्ट इज बडिंग एंड इट इज वेरी 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 रेयर। बहुत कम होगा चांस जब बडिंग शो करेंगे, अदरवाइज दे विल शो बाइनरी फिशन। तो देयर आर 3 मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, सॉरी, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये, इसके आगे फर्दर टाइप्स हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब ये इतने छोटे ऑर्गेनिज्म कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे? इसमें एक बिहेव करता है मेल की तरह, एक बिहेव करता है फीमेल की तरह। आर यू श्योर आई हैव गिवन यू द डायग्राम आल्सो? यस, आर वी डन विद द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया? No, ma'am. Not yet, no. yes. Okay. So I'll explain the diagram first, then it will be more clear to you. बैक्टीरिया का डायग्राम वो भी आपको बनाना है तो आप बना सकते हो, इसी में ही ट्राई कर। I'll make structure of bacteria. It is prokaryotic or eukaryotic? प्रोकैरियोटिक। Yes. अरे इतना क्या सोचना पड़ रहा है सबको? हम पढ़ी मोनेरा रहे हैं। मोनेरा क्या थे? प्रोकैरियोट्स। टेल मी कशिश, प्रोकैरियोट्स मींस न्यूक्लियस कौन सा है इनका? Ma'am, not well defined. Not well defined. Very good. Kiranpreet, can you tell me? Not well defined means what is that type of DNA is called when it is not covered by nuclear envelope? Ma'am, what DNA is called? Yes. Do they have covering outside their DNA? नहीं, कवरिंग है इनके आसपास न्यूक्लियस के बाहर?
डीएनए के बाहर? Say yes or no. Anyone? Yes, ma'am. They have. Ma'am, yes. Okay. No, they do not have covering. Pro means primitive. They have DNA is naked without any clothes. Naked. They have cell wall. कोई बात नहीं बच्चे, नहीं अभी आपको डायग्राम समझ आएगा तो आप खुद आंसर्स करोगे अब नेक्स्ट. They have a cell wall which is made up of peptidoglycan. सब लिखवाया हुआ है आपको. पेप्टाइडोग्लाइकन, म्यूरामिक एसिड, म्यूकोपॉलीपेप्टाइड. और ये वही चीज है जो भिंडी में होती है, बताया था ना आपको. Yes, ma'am. भिंडी, हाँ, ओकरा में जो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस होता है वो सेम कंपोजिशन का है. म्यूरामिक एसिड, म्यूरिन, पेप्टाइडोग्लाइकन, म्यूकोपॉलीपेप्टाइड, एक ही बात है. सेल वॉल के अंदर आती है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन इज इनवेजिनेटेड. कोई भी चीज का साइज अगर बड़ा होगा तो वो क्या होगा? इंक्रीज सरफेस Surface एरिया. area. यस, फॉर रेस्पिरेशन. और जो ये इन्वेजिनेट हुआ हुआ है इसको बोलते हैं मीजोजोम. मीजोजोम का फंक्शन आपको लिखवाया था मैंने पिछली स्लाइड में. इट इज Increases the surface area for respiration and very good, absorption. very good. Increase the surface area for absorption and respiration. Mesosome बहुत important structure है in case of bacteria. Then this is cell membrane. सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? बनता तो ये चॉकलेट क्वेश्चन है बच्चे, हम ना करते होते हैं क्लास में. कई बच्चों को पता होगा, जैसे पनीशा को, सौम्या को. यस, वी यूज्ड टू डू दीस चॉकलेट क्वेश्चंस इन द क्लास. जस्ट लेट मी. सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? हमेशा सेल मेम्ब्रेन का कोई कंपोजिशन? एनीवन? नो, कोई बात नहीं. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, बिकॉज आई एम गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चंस टाइम एंड अगेन, तो आप लोग ध्यान से सुन लो. इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन. इट इज कॉल्ड एज लाइपोप्रोटीन. सेल मेम्ब्रेन हमारी फ्लेक्सिबल होती है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन. मीजोजोम आ गया एंड दे हैव डीएनए नेकेड. अभी आपने सुन लिया कि डीएनए के बाहर इन्वेलप नहीं होती. इट इज नेकेड डीएनए. डीएनए थ्रेड पड़ा हुआ है एंड दिस is given a special name which is called as nucleoid. मैंने नेक्स्ट क्लास में टेस्ट लेना है तो बहुत ध्यान से सुनो. न्यूक्लियोइड की डेफिनेशन अगर कोई पूछे, व्हाट इज न्यूक्लियोइड? नेकेड डीएनए इन प्रोकैरियोट्स. नेकेड डीएनए मतलब विदाउट एनी क्लोथ्स, विदाउट एनी डीएनए कवरिंग. फिर इसके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है अपार्ट फ्रॉम दिस डीएनए. दे हैव, बहुत ध्यान से सुनना, सर्कुलर डबल. इस डीएनए से एक्स्ट्रा है, आई एम रिपीटिंग, एक्स्ट्रा डबल सर्कुलर डीएनए which is called as plasmid. प्लाज्मिड की डेफिनेशन मुझे कौन सुनाएगा? अच्छा, मैंने क्या बोला अभी प्लाज्मिड के लिए? Double Ma'am, it is a circular. double circle. DNA. यस, एक्स्ट्रा आ गया ना मेन डीएनए से. नवी ध्यान से सुनो बेटे. नवरीत, माइक में. इट इज एक्स्ट्रा डबल क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए. एक्स्ट्रा है, डबल है, सर्कुलर है, डीएनए है. एक्स्ट्रा डबल सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए व्हिच इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड. जिसके पास ये डीएनए एक प्लाज्मिड है, उसके पास ही स्पेशल स्ट्रक्चर आ जाता है जिसको बोला जाता है सेक्स पिल्लाई. जिसके पास भी प्लाज्मिड है, दे हैव दिस सेक्स पिल्लाई. अभी तक ये फीमेल थी, प्लाज्मिड आते ही ये बन गया मेल. सेक्स पिल्लाई है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑल ओवर द सरफेस. पिल्लाई पाइलिन प्रोटीन के बने and they may have long thread like structure which is present at one end. इसके कई बार एक एंड पे बहुत लंबा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है which is called as anyone? Flagella. Flagella. What is the function of flagella? Locomotion. Locomotion. And they have cytoplasm also. They have ribosomes also.
प्रोकैरियोट है, दूसरा राइबोसोम सिंपल वाले होंगे 70S. Please draw this diagram. Then I'll move further. Please draw this diagram in your notebooks. And when you are done, just raise your hand. और जिसको क्लियर नहीं हो वो बता भी देना. Okay, very good, Sukhman. Kiranpreet. जिसको नहीं समझ आए, just let me know also. Okay, Kashish, very good, all of you. Take your time. If you have not made the diagram, take your time. Very good, Kashish. Okay, Soumya. So can I move to the next page now? Yes. तो इसकी labeling में, okay, take your time. बना लो, फिर I'll explain it once again. Done, बच्चों? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. So I was telling you about the labeling part. तो labeling में आपने देखा outermost covering is cell wall, which is made up of peptidoglycan या mucopolysaccharides. Inner to it is cell membrane, which is made up of, yes, cell membrane is made up of lipids and Lipids and proteins. Lipids and proteins. proteins, and it is invaginated to form a structure known as mesosome. Mesosome. Mesosome का function क्या था? Increase surface So area. Increase surface area. Very good, for respiration. And they have naked DNA, which is called as Nucleoid. 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 And apart from this DNA, they have extra circular chromosomal DNA, which is called as. Plasmid. Plasmid. And if they have plasmid, they have this sex pili. Sex pillar. Yes. And they may have some large thread-like structure, which is flagella. Ribosomes है 78. That's it. तो अगर आपने देखा कि बैक्टीरिया में, मैंने आपको बता दिया कि अगर इनके पास ये प्लाज्मिड है तो ये मेल है क्योंकि इनके पास सेक्स पिला है, और अगर ये एब्सेंट है तो फीमेल है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी चीज से ये परफॉर्म करते हैं. दे विल शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो आप सुनोगे पहले, फिर उसके बाद नोट डाउन करोगे. व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. तो दे शो इट बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. सिर्फ लिख लो, आपकी एनसीईआरटी में नहीं है. बहुत इजी वे में आई एम एक्सप्लेनिंग ताकि आपको मुश्किल भी ना हो, बट it is important from need point of view. This transformation was given by scientist which is called whose name was Griffith. +2 में बड़ा important scientist है Griffith, जिसमें उसने बोला कि एक से बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है. जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए. So this is known as transformation. Transformation is transfer of genetic material, DNA, from one bacterial cell to another.
दूसरा प्रोसेस दैट इज ट्रांसडक्शन. ट्रांसडक्शन में एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना डीएनए वाया वायरस. तो what is transduction? Transfer of genetic material from one bacterial cell to another via virus. This was given by Zinder and Liederberg. सिर्फ नाम लिखना साइंटिस्ट के. Zinder and Liederberg ने कहा ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर वाया वायरस. थर्ड टाइप आती है कंजुगेशन. कंजुगेशन में कहते हैं दो सेल जुड़ जाते हैं एंड दे ट्रांसफर देयर प्लाज्मिड फ्रॉम वन सेल टू अनदर. तो जिसके पास प्लाज्मिड आ गया, मैंने आपको बताया प्लाज्मिड इज डबल सर्कुलर है, तो ये एक यहीं रह जाएगा, दूसरा यहाँ आ जाएगा, और आते ही इसके पास सेक्स पिल्लाई आ जाएंगे. तो पहले एक मेल और फीमेल था, बाकी दोनों एंड में दोनों मेल बन जाएंगे. दिस इज कॉल्ड एज कंजुगेशन. So how many of you are clear with these three types of sexual reproduction? Tell Ma'am, me. can you And if explain the third one once again? third one, conjugation is the union. कंजुगेशन का मतलब ये होता है जुड़ना. इसमें इन्होंने बोला जो प्लाज्मेट था ना डबल, जिसके पास प्लाज्मेट होता है उसके पास क्या थे? सेक्स पिल्लाई. मेल था, ये मेल के लिए साइन होता है. ये फीमेल थी क्योंकि इसके पास था ही नहीं प्लाज्मेट, तो इसने क्या किया, अपना एक प्लाज्मेट तोड़ के इसको दे दिया, क्योंकि इसके पास फिर भी एक रह जाएगा. अब इसके पास भी एक प्लाज्मेट आ गया, आते ही ये भी मेल बन गया. और इट इज नॉट फीमेल, इट इज मेल. तो अल्टीमेटली अगर एक जार में आपने एक मेल रखा है और उसको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, तो अल्टीमेटली आपको सारे बैक्टीरिया कौन से मिल जाएंगे एंड में? मेल. बिकॉज वो कंजुगेशन प्रोसेस से एक एक प्लाज्मेट ट्रांसफर करते रहेंगे. तो 3 मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आप सिर्फ नाम याद करो, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन. आर यू क्लियर विद दीज टर्म्स? यस और नो? Yes, ma'am. Ma'am, it's clear. Clear. So this was all about. Yes. Ma'am, can you repeat the second one? Second one is transduction, in which the DNA, naked DNA था ना, is transferred from one bacterial cell to another via virus. Virus चिपकता है इसके ऊपर और ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा मटेरियल, और जैसे ही दूसरे पे आएगा उसके अंदर फिर वो इंसर्ट कर देगा. Okay, ma'am. ठीक है, तो अब क्लियर है सभी को? तो कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन. So these are the different types of modes of sexual reproduction. So we have done till now bacteria on the basis of their different types. We have done different types of bacteria on the basis of their nutrition, sexual reproduction, respiration, their process of taking up the stain also. तो bacteria आप पढ़ चुके हो. इसी में there were different types of bacteria हमने पढ़े थे. सबसे पहले हमने पढ़ा था आर्के बैक्टीरिया. आज हम ये फिनिश करेंगे आर्के बैक्टीरिया. What do you mean by archaea? Old. Ancient. Very good. Old. Very good. Very good. अब ओल्ड मतलब ये नहीं कि बहुत बूढ़ा ही है. ओल्ड मतलब ये है कि जैसे ये पहले थे 100 साल पहले, वैसे ही आज. And these ancient bacteria can survive in extreme. कोई बताएगा मैंने क्या एग्जांपल दी थी? Ma'am, Ma'am, methanogens. methanogens. Yes, very good. Methanogens या फिर hot sulfur spring. कोई गया मणिकरण साहब? वहां पता है आपको पानी इतना उबलता हुआ होता है कि आप पानी में चावल डालते हो, पानी में चने डालते हो Ma'am, तो I've heard उबल, about it. यस, उबल जाते हैं. उस पानी में भी यू विल फाइंड दीज बैक्टीरियाज. तो इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में रह रहे हैं आर्के बैक्टीरिया. एसिडिक में रहते हैं,
थर्मो एसिडोफिल्स एनसीईआरटी में गिवन है. Thermo means heat, acido means acid, fills means loving. Halo means salt, fills means loving. Salt loving halophiles. नमकीन नमक में रह रहे हैं, एसिड में रह रहे हैं, उबलते पानी में रह रहे हैं. अब ऐसा क्या है इनके अंदर जो ये रह लेते हैं? दे आर प्रोकैरियोटिक. बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है. अभी आपने पढ़ा प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक मतलब ना कोई ऑर्गेनेली है, कोई माइटोकॉन्ड्रिया, कोई क्लोरोप्लास्ट, कुछ भी नहीं था. क्लोरो ऑर्गेनेली एब्सेंट. न्यूक्लियस प्रेजेंट है कि एब्सेंट? प्रेजेंट. Absent. Absent. DNA present and nucleus is absent. Instead they have nucleoid. Cell wall special है जो इनको प्रोटेक्ट कर रही है. क्या नाम है उसका सेल वॉल का? Peptidoglycan. Peptidoglycan. Try करो, सब बोलो. Even if you are on mute mode, try to speak it to yourself. Believe me, क्लास में अगर एफर्ट कर लोगे बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और जब आप क्वेश्चंस करोगे या आप पेपर देने जाओगे, देन सीरियसली यू विल सी कि आपको इतना मतलब एंजॉय किया आपने और आपको आता है. एटलीस्ट यू आर फेमिलियर विद द वर्ड्स. एंड बाकी बच्चों को पता ही नहीं होगा ये आया कहाँ से, क्या बोल रहे हैं टीचर्स. द सेल वॉल is special which is made up of muramic acid, murine, कुछ भी बोल दो. 4 नाम लिखवाए, muramic acid, murine, peptidoglycan, mucopolysaccharides, कुछ भी बोल दो. आर्किया में रिप्रोडक्शन कैसे होती है? कैसे होती है बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन? asexual. एसेक्सुअल में कौन सी टाइप? Binary fission. बाइनरी फिशन. तो आर्किया बैक्टीरिया इतने सिंपल है, कुछ भी नहीं है उनमें. Please write it down, then I'll proceed. Be quick. And when you are done, just let me know. Then I'll move to the next page. Ma'am, the pronunciation for the word you have written above it is it thermoacidophilo? Fills. Thermoacidophils. Okay, fills. Fills. Done बच्चों? Yes, ma'am. Okay. Then write down different types. तो पहली टाइप है मेथेनोजेंस. कहाँ मिलेंगे मेथेनोजेंस? In the intestine of? In the intestine of, yes? Ruminants, very good. Intestine of animals. ये ruminants. Ruminants होते हैं cows, buffalo. तभी वो एक बार खाना खा लेते हैं, फिर दोबारा उनके मुंह चबाते रहते हैं. कहते हैं ना जुगाली कर रहे हैं. Why they keep on chewing? क्योंकि एक बार वो खाना पूरा निगल लेते हैं, बैक्टीरिया उसे डाइजेस्ट करते हैं, फिर दोबारा लेके आते हैं मुंह में ताकि दूसरे स्टमक में जाए. दे हैव 2 स्टमक्स. एक बार पहले वो बैक्टीरिया से किल करवाते हैं, उसको डाइजेस्ट करवाते हैं, फिर दोबारा डाइजेस्ट करते हैं. एंड मेथेनोजेंस रिलीज व्हिच गैस? नाम से पता चल रहा है, मीथेन गैस. वेरी गुड. तो मेथेनोजेंस. दूसरी टाइप आती है जो आपको लिखवाई है मैंने, थर्मोएसिडोफिल्स. Thermoacidophils can live in very high temperature, acidic high temperature area and high acidic condition. Example इसका लिख लो, Thermus aquaticus.
नाम से पता चल रहा है. थर्मा मीन्स हीट, एक्वाटा मीन्स पानी. लास्ट कौन सी लिखवाई थी आपको? हेलोफिल्स. हेलोफिल्स कौन से होंगे जो कौन से लविंग होंगे? Salt. सॉल्ट लविंग. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड सी में रहते हैं. Why Dead Sea is called as a Dead Sea? कहते हैं वहां कोई डूबता नहीं है. बताएगा कोई? Ma'am, because a large amount of salt is present in the sea. Yes, very good. It is hypersaline. Dead Sea is dead. There is no organism surviving in that area. और कभी आप डूबोगे नहीं because it is hypersaline. Ma'am, we will be floating on the water, but ma'am, it is said that we should not stay in that water for too long. Yes. Exosmosis हो जाएगी. You're right. If you are done, can I move to the next part now? Yes, ma'am. Okay. बच्चे आज थोड़े से हेवी वर्ड्स आपने पढ़े हैं. जो एग्जाम्पल्स हैं आई थिंक क्लियर हो चुका है. आर्किबैक्टीरिया में सिर्फ आपने 3 डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं जो अभी अभी हमने की. मिथानोजेंस, थर्मोएसिडोफिल्स एंड हेलोफिल्स. आर्किबैक्टीरिया ऐसे थे जो पुराने बैक्टीरिया हैं. Bacteria they are surviving in extreme condition, whether it is high temperature or high acid or high salt. तो I guess ये तीनों सभी को clear हो चुके हैं. Now there are yes archaebacteria के बाद अगर आपको याद हो second type आपने पढ़ी थी cyanobacteria. What is the another name for cyanobacteria? They are not Blue-green algae. very good. BGA. I told you कि algae लगता है तो आधे ज्यादा बच्चे बोलते हैं it's an algae. No, it is not an algae. It is a bacteria. And I did my PhD on this only. The organism which existed on first on Earth. मैंने बताया था आपको. Who was the first organism that existed on Earth is? Blue-green algae. Blue-green Blue-green algae. कहते हैं लाइफ ही इन्होंने शुरू की. ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में अगर हम पढ़ें तो दे आर यूनिसेल्युलर. दे मे बी फिलामेंटस. बहुत सारे इकट्ठे जुड़ जाते हैं तो फिलामेंट बना देते हैं. फिलामेंट मतलब धागा. दे मे फॉर्म अ कॉलोनी, कॉलोनियल. जैसे एक ऑर्गेनिज्म है तो सिंगल आ गया, बहुत सारे जुड़ गए तो फिलामेंट धागा बना दिया. कॉलोनी मतलब ग्रुप, बंच, क्लस्टर. So these are the different types of blue-green algae on the basis of their shape or on the basis of their structure. Blue-green algae, they are very important economically. They can fix nitrogen from air. They have special cell which can fix atmospheric nitrogen, and that cell is called as heterocyst. अगर हम एक फिलामेंटल एल्गी को देखें, ब्लू ग्रीन एल्गी. यस, ब्लू ग्रीन एल्गी बेटे, नॉट बैक्टीरिया. ठीक है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया के ही अंदर पार्ट पढ़ रहे हैं. बट ये ब्लू ग्रीन एल्गी है. बैक्टीरिया इज नॉट ग्रीन इन कलर बट दिस इज ग्रीन इन कलर. अगर मैं एक आपको साइनोबैक्टीरिया दिखाऊं ना स्लाइड पे तो आपको ये दिखेगा ऐसे फिलामेंट मतलब धागा, ऐसे लगेगा मोतियों की माला है, बीडेड चेन. And in this there is a sometime there is special cell which is large in size, and that special cell has nitrogen fixing bacteria in it, nitrogen fixing enzyme in it. ये सारा बैक्टीरिया है. तो इसमें जो ये स्पेशल सेल है, it is called as heterocyst. Now what is the function of heterocyst? Helps in fixing nitrogen. Nitrogen. It helps in fixing nitrogen from air. And they do not have flagella. जरूरत ही नहीं इनको चलने के लिए, तो no flagella. Got it everyone? So ये cyanobacteria के features हैं, and they are green in color. So they may be having what? Chlorophyll. Chlorophyll. क्या असली का chlorophyll होगा? Bacteria से? No, ma'am. No. They have pigments which may have chlorophyll A. Chlorophyll A is universal pigment. जितने भी green color के पौधे होंगे, they will all have chlorophyll A.
They have carotenoid. They have phycobilins. ये सारे इनके अंदर पिगमेंट्स हैं। और प्यारे बच्चों, इसका नाम सुनना जरा। अगर मैंने आपको लिखवाया है, इट्स नेम इज साइनोबैक्टीरिया। सियान कलर जो होता है ना, दिस इज ब्लूइश ग्रीन। पीकॉक ब्लू सुना है किसी ने? पीकॉक का कलर ब्लू ग्रीन। हाँ, मोर Yes, पंख ma'am. देखे हैं? मोर पंख देखोगे तो, अगर किसी के घर में अभी है, जाके जरूर देखना। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। ब्लूइश ग्रीन जो कलर, दैट इज कॉल्ड एज सियान। तो इसलिए साइनोबैक्टीरिया सियान कलर होता है, ब्लूइश ग्रीन। So all the bacteria, these blue-green algae, they have the cyan color. Please write down these points. And in the next class, please bring your NCERT. Please buy it. You can take it as second-hand notebook or maybe first-hand. It's up to you. But it is mandatory for everyone to have that NCERT.